السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں سفر میں ہوں اور کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، تو سارے کے سارے سوالات جو ہے وہ عید میلاد النبی سے متعلق جو آئے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی سوالات آئے ہیں تقریباً ہم نے سب کو شامل کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، سب سے پہلے عید میلاد النبی کس نے منائی، کب منائی، کیوں منائی، کہاں منائی اور کیسے منائی؟ پہلا سوال سن لیے۔ عید میلاد النبی ایک کتاب ہے، مولانا عبدالسمیع صاحب بہت بڑے عالم ہیں بریلوی مسلک کے، انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال کے بعد بنائی گئی۔ کتنے دن کے بعد؟ 600 سال کے بعد۔ مولانا عبدالشکور صاحب کی کتاب ہے تاریخ میلاد النبی، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ 600 سال کے بعد حضور کی ہجرت کے منائی گئی۔ کہاں منائی گئی؟ عراق کا علاقہ ہے موصل کے علاقے میں سب سے پہلے منائی گئی۔ سب سے پہلے کس نے منایا؟ ان کا نام ہے عمر بن محمد ملا یا عمر بن ملا محمد۔ کس بادشاہ کا زمانہ تھا؟ سلطان اربل کا زمانہ تھا جس وقت یہ عید میلاد النبی منائی گئی۔ کیوں منائی گئی؟ اس کی وجہ منائی اس لیے گئی کہ عراق سے لگا ہوا علاقہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، تو عیسائی لوگ دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس ڈے جسے آپ کہتے ہیں، اس وقت اس کا یہ نام نہیں تھا، وہ لوگ مناتے تھے۔ وہ اتفاق سے اس سال عید میلاد النبی اور دسمبر کا مہینہ کیا ہوا؟ برابر آیا۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم تو ستا میں ہو اور اتنی بڑی تمہاری سرکار ہے اور تم لوگ اپنے نبی کی خوشی میں تھے، تو انہوں نے تانا دیا ان کو۔ تو اس کو بعد یہ بات بادشاہ کو بتائی انہوں نے، تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، ستا بھی ہے، ہم اس سے زیادہ منائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے عیسائیوں کے چیلنج پر منائی گئی۔ کیوں منائی گئی؟ یہ وجہ ہے۔ ایک دوسری وجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت جب گمراہ ہوگی تو آپ نے فرمایا گمراہی کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ جتنا کام عیسائی اور یہودی نے کیا سب تم کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا اتنا کرو گے کہ اگر وہ ایک گوہ کی بل میں، بچکھوڑا جسے آپ کہتے ہیں، گوہ کی بل میں اگر کوئی یہودی داخل ہوا ہے تو مسلمان بغیر سوچے سمجھے اس میں بھی داخل ہوگا، لیکن کرو گے سب۔ لہذا یہ سب سے پہلے وہاں سے عیسائیوں کی نقل میں منائی گئی۔ کیسے منائی گئی؟ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، بادشاہ تھا تو بڑے میدان میں جو ہے وہ 10 دن کے لیے فنکشن کیا گیا، ہزاروں بکرے کاٹے گئے، مرغیاں تلی گئیں، مطلب حتیٰ کہ ڈانس ہوا، میوزک ہوئی، سب کچھ ہوا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کرنے والے یہ صاحب سلطان اربل صاحب ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیا عید میلاد میں ولادت کے دن جبریل امین نے دنیا میں جھنڈے گاڑے ہیں؟ اگر ہاں تو اس جھنڈے کا کلر کیا تھا؟ نہ جھنڈے گاڑے ہیں، جب جھنڈے گاڑے ہوتے تو کلر بتایا جاتا۔ جتنی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ اس دن جبریل امین آئے جھنڈا لے کر کے، ایک مسجد اقصیٰ پہ گاڑا، ایک بیت اللہ پہ گاڑا، ایک حضور کے گھر پہ گاڑا، ایک پچھم گاڑا، ایک پورب گاڑا، سب جھوٹی بات ہے، ایک بھی بات سچی نہیں ہے، ساری کی ساری جھوٹی بات۔ لہذا جب جھنڈا ہی نہیں گاڑا تو کلر بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ پوچھا گیا ہے کہ عید میلاد نبی میں نئے کپڑے پہننا سنت ہے؟ عید اور بقرعید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا پہنو، حدیث ہے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہماری عید 2 ہی ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، بقیہ جتنی عید مناتے ہیں یہ آپ کی پاکٹ سے نکلی ہوئی عید ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنا عیدان، ہمارے لیے تو 2 عیدیں ہیں، بقیہ کوئی عید ہماری عید نہیں ہے، آپ جس کو چاہے عید بنا لے اپنے، تو وہ الگ بات ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عید میلاد کے جلوس میں مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اپنا مطلب بھوکال بنتی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں،
यकीनी बात है कि इतना बड़ा जलसा निकलेगा, एक शहर से दूसरे गली में गुजरेगा, तो लोगों के ऊपर भौकाल बनती है। आइडिया अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूं सारी दुनिया वालों से कि अगर सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज शुरू कर दे तो भौकाल नहीं बनेगी? भाई तुम तो साल में एक मरतबा भौकाल बनाने की बात कर रहे हो ना। सारे दुनिया के मुसलमान अगर तय कर ले कि मुझे 5 वक्ता नमाज मस्जिद में पढ़नी है, तो उससे बड़ी भौकाल क्या होगी? लेकिन आपको अपनी भौकाल पसंद है, सरकार दो आलम ने जो भौकाल का तरीका बताया वो नहीं पसंद है। ज्यादा भौकाल वही भौकाल है जो सरकार दो आलम ने भौकाल बनाई है। तुम एक दिन की बात करते हो, यहां दिन में 5 वक्त की बात है। फिर पूछा गया है क्या ईद मिलाद न मनाने की कुरान और हदीस में कोई मनादी है? अगर हाँ तो आयत हदीस कोट करें, यानी ईद मिलाद नबी न मनाया जाए, इसकी आपके पास कोई दलील है? कुरान मजीद की तरफ आप पैर करते हैं? कहीं कुरान हदीस में नहीं लिखा है। कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कुरान मजीद की तरफ पैर करना हराम है। हर चीज लिखी नहीं होती है। पहले एक एक बात सुन ले, क्योंकि अहम सवाल है। इबादत और अकीदा की एक एक चीज सरकार दो आलम बता कर गए हैं। आप इबादत और अकीदा अपनी मर्जी से कि ये चीज मना नहीं है। अच्छा, हुजूर को ये कैसे मालूम था कि तुम ईद मिलादुन नबी मनाओगे कि 600 साल पहले बता देते कि मना है? भाई मना उस वक्त करेगा जब आदमी को आइडिया लग जाए कि लोग ऐसा करेंगे, और जो चीज उस वक्त कर रहे थे उसको मना किया आपने। लोग कब्रों पर चिराग करते थे, लोग कब्रों को सजदा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि लानत हो यहूदियों और नसरानियों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। वो मालूम था, आपने बता दिया। हुजूर को अगर ये आप बता देते कि हम 600 साल के बाद शुरू करेंगे और फिर 1440 में जब पहुंचेंगे तो डीजे के साथ निकाह। अब कल एक आदमी पूछे कि भाई डीजे के साथ, ये भी पूछना चाहिए इनको कि डीजे के साथ जुलूस पूरी दुनिया, पूरे भारत में निकलता है, डीजे के साथ जुलूस निकालना कहां मना है? तो अगर ऐसे एक एक लिस्ट, एक आदमी पूछे हमसे, मौलाना साहब अम्मा के ऊपर पेशाब करना कहां मना है? कहीं लिखा है कि अम्मा अब्बा के ऊपर पेशाब नहीं करो सर पे? कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसी दलील पकड़ी जाएगी तो फिर कोई चीज नाजायज रही नहीं जाएगी। पूछा गया है मौलाना साहब, अगर देवबंदी मिलाद मनाने के मुखालिफ है और बरेलवी हजरात मनाते हैं तो हम आवाम क्या करें? ये अच्छा सवाल है। भाई इसी स्टेज से एक आदमी तकरीर करेगा कि ईद मिलादुन नबी मनाना सबसे बड़ा सवाब का काम है, दूसरा आदमी कह रहा है ईद मिलादुन नबी मनाना सुन्नत तरीका नहीं है। अब सवाल ये पब्लिक क्या करे बेचारी? पब्लिक तो देख रही है कि इनकी दाढ़ी उनसे बड़ी है और उनकी दाढ़ी भी बड़ी है, तो कौन सी दाढ़ी को नाप करके वो बेचारा समझे कि कौन बात सही कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका तरीका हमारे सरकार ने बताया है, कुरान में भी बताया है, हदीस में बताया है। कुरान में लिखा हुआ है, अब तो मसला इख्तलाफ का हो गया, गौर से सुनो इस मसले की, जवाब बड़ा अहम है। मसला इख्तलाफ हो गया, एक कह रहा है मनाओ, एक कह रहा नहीं मनाओ। तो पता चला अब आलिम मसला नहीं हल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जब एक लड़ते हैं तो दोनों मसला हल थोड़े करते हैं। अब हल करने के लिए क्या होता है, तीसरे के पास जाते हैं, उसको जज बना लें, सालिस बना लें, मीडिएटर जो भी बनाए कि भैया हम दोनों लड़ रहे हैं, आप मसला हल कर दीजिए। अब दोनों गिरोह कह रहे हैं, कह रहा जायज, एक कह रहा ना जायज, तो इन दोनों से मसला नहीं हल होगा। हाँ, लड़ाई ना हो तो फिर ठीक है, लड़ाई हो गई, मसला में इख्तलाफ हो गया। कुरान मजीद कहता है वइन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि जब तुम किसी मसले में दो जगह तनाज़ा खड़ा हो जाए तो ऐसी शक्ल में तुम अल्लाह से पूछो कि अल्लाह इस मसले में कुरान में क्या लिखा है, रसूल से पूछो कि आपने ईद मिलादुन नबी कैसे मनाई है। अल्लाह ने बात वादे कर दिया कि जिस मसले में इख्तलाफ हो जाए वहां पर कुरान को क्या कर लो, फैसल मान लो, जज मान लो। हबीब मुस्तफा सरकार, ये अल्लाह का जवाब है। हबीब मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत जो है मुख्तलिफ फिरकों में बटेगी। एक रवायत पे आता 73 फिरके में बटेगी, एक के अलावा 72 जहन्नम में जाएंगे, एक के अलावा 72 जहन्नम में जाएंगे। सहाबा घबरा गए कि रसूल वो कैसे मालूम होगा कि उसमें से 73 में एक कौन ओरिजिनल है, कौन सही है? सरकार दो आलम ने इतनी प्यारी और इतनी आसान बात बता दी कि फिरके बटने का मतलब क्या होगा, कोई किसी को सही कहेगा, कोई किसी को सही कहे, कोई किसी को गलत कहेगा।
तो अब पता चला आपस में मसला नहीं हल कर सकते आप, अब मसला करेगा हल तीसरा आदमी। वो तीसरी बात हुजूर ने फरमाया कि अगर ऐसा मसला फंस जाए तो ये देख लेना, जिस मसले में डिस्प्यूट है, जिस मसले में आपको इख्तलाफ है, माना अलैहि व साबी, कि देखो उस काम को मैंने कैसे किया है और मेरे सहाबा ने कैसे किया है। अब जो 600 साल तक काम ही नहीं हुआ है तो कैसे पता लगा लिया जाएगा कि साहब किसने किया है। तो लिहाजा मसले का हल अल्लाह के रसूल भी बता दिए, अल्लाह की जानिब से भी आ गई कि अगर ऐसा मसला हो जाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, अल्लाह की जानिब मामले को लौटा लो, रसूल की जानिब मामले को लौटा लो। रसूल ने बता दिया कि अगर इख्तलाफ हो जाए, फिरके में बढ़ जाओ, तो फिर ऐसी शक्ल में देख लेना कि उस मसले में जिसमें तुम बटे हो उसमें मैंने क्या कहा है और मेरे सहाबा ने क्या अमल किया है, खुद का खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूछा गया मौलाना साहब ईद मिलादुन्नबी में चंदा देना ज्यादा अफजल है या किसी गरीब की मदद करना। ईद मिलादुन्नबी में चंदा देने का 1 पैसे का सवाब नहीं, क्योंकि तुम्हारे चंदे से डीजे आया है। क्या आया है? डीजे आया है। मालूम आपको बड़े शहरों में 1.5 लाख की बुकिंग होती है डीजे की। वो 1.5 लाख पैसा कहां से आया है? आपके पैसे से आया है। डीजे बजाने के लिए जो चंदा दिया जाएगा, आप कैसे, आप ही फतवा दे दीजिए, आप मसला बयान कर दीजिए कि डीजे के लिए चंदा हमने दिया है और हमको सवाब मिलेगा। लिहाजा 1 पैसे का सवाब नहीं होता ईद मिलादुन नबी के नाम पर। जो कुछ इस वक्त मुरव्वज है ईद मिलादुन नबी, जो इस वक्त राइज है, इसमें 1 पैसे का सवाब नहीं होता जो आदमी भी चंदा दे रहा है। रहा गरीब की मदद, हदीस में है, कुरान में है, सब जगह है। एक नहीं कुरान की आयत है कि पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, कि भाई जहन्नम में कैसे पहुंच गए, जहन्नम में क्यों आए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। वो जवाब देगा उस वक्त। और ये एक जगह और भी है कि जहन्नम में हमारे जाने की वजह यह है कि हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे। तो खाना खिलाना 100 गुना अफजल है बनिस्बत ईद मिलादुन नबी में चंदा देने के। सारी बातें दलील से कर रहा हूं। पूछा गया है क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग खड़े होकर सलाम पढ़ते थे? अगर नहीं तो कब से शुरू हुआ? ये भी अच्छा सवाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग सलाम पढ़ते थे नमाज में। किसे पढ़ते थे? आज आप भी पढ़ते हैं नमाज में। देखिए कुरान पढ़ते हैं नमाज में कैसे? खड़े होने की हालत में। सलाम कैसे पढ़ते हैं? जिसको दरूद सलाम अत्तहियात हो, वो कब पढ़ते हैं आप? बैठकर। ये अल्लाह को मालूम था कि आने वाली नस्ल ऐसे बर्बाद होगी, अगर इसको कहीं क़याम की हालत में कर दिया जाएगा तब तो मामला खड़ा हो जाएगा। लिहाजा दरूद और सलाम को उसने नमाज में हुक्म दिया कि बैठ के पढ़ो। दरूद और सलाम को हुक्म दिया कि बैठकर पढ़ो, वरना तुम खड़े खड़े होकर के पढ़ने की दलील बगैर दलील के दलील बना लिया है। अगर कहीं नमाज में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? हुजूर के जमाने में सलाम पढ़ा जाता था नमाज में, और नमाज के बाद कभी नहीं पढ़ा गया, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हानिफ नहीं हूं, कभी भी जिस तरीके से आप सलाम पढ़ते हैं ऐसा सलाम ना अबू बकर को मालूम, ना उमर को मालूम, ना पढ़ा गया ना पढ़ा जाता है। लिहाजा हुजूर के जमाने में सब खड़े। ये सलाम सबसे पहले खड़े होकर कब वो शुरू बता देते आपको। ये जो 600 वाली बात बताई ना, तो ये जो बादशाह था तो ईद मिलाद की महफिल भी लगी, तो उसमें अल्लाह के रसूल की शान में अशार कहेंगे अरबी में। तो एक साहब थे, बड़े आलिम थे, उन्होंने रसूल की शान में एक शेर पढ़ा, बहुत अच्छा शेर था, या किसी एक दूसरे साहब ने पढ़ा, दोनों रवायतें हैं। दूसरे साहब इतना अच्छा शेर था कि वो दूसरे साहब एकदम खो बैठे अपने आप को और खड़े होकर के वाह 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 वाह। वहां से सलाम शुरू हुआ बाबू। सबसे पहले ये बंदा है, और ये भी लिखा हुआ है, ये सलाम की कहानी भी लिखी हुई है। कहां? मौलाना अब्दुल समी साहब की किताब अनवार सातिया में भी लिखी है, और मौलाना अब्दुल शकूर साहब की किताब तारीख ईद मिलादुन नबी में भी लिखी हुई है कि सबसे पहले सलाम। अचानक वो खड़े हो गए और वो जैसे कोई आदमी को वजद आ जाए, कैफियत अपनी खो बैठे, वैसे खड़े होकर के वो सलाम, मतलब, और वो सलाम नहीं पढ़ा उन्होंने, खड़े होकर के उस शेर की क्या किया, तारीफ किया। लोगों ने वहां से सलाम को निकाला। पूछा गया है अगर ये अकीदा रखा जाए कि महफिल में हुजूर आते हैं तो ये अकीदा रखना कैसा है? ये अकीदा उनको तो कतई नहीं रखना चाहिए जो कहते हैं हुजूर हर जगह मौजूद है। नहीं समझे बात? भाई एक आदमी कहता है हुजूर हर जगह हाजिर और नाजिर है। जब हर जगह हाजिर नाजिर है तो आवे की क्या जरूरत है? भाई जब एक आदमी हर जगह मौजूद है तो आना क्या माना हुआ?
भाई आने का तो माना हुआ कि आप अपने अकीदे के खिलाफ बात कह रहे हैं। आपका तो अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है। जब हर जगह मौजूद है तो आना आए क्या? आप लिख रहे हैं घर पे लगा रखा है खुश आमदेद अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, तो रसूलुल्लाह थे नहीं वहां क्या? तो अपने अकीदे को पहले सही कर लो, वो वाला सही है कि ये वाला सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे डीजे सुनने के लिए नहीं आते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में गुजरे, एक आदमी बांसुरी बजा रहा था। क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। कान में आवाज आई तो उंगली डाल लिया, जब तक बांसुरी की आवाज महसूस होती रही कान में उंगली डाले रहे, रास्ता क्रॉस कर गए, उसके बाद उंगली हटाए। और ये हजरत उमर नबी से छोटे हैं। जिसको बांसुरी तक सुनना पसंद नहीं हो उस नबी को लाकर तुम डीजे सुनाना चाह रहे हो। अच्छा, वैसे भी शर्म खानी चाहिए कि जब हुजूर हर जगह हाजिर और नाजिर हैं तो डीजे बजाते हुए शर्म नहीं आती है कि हुजूर भी यहां मौजूद हैं और उसके बावजूद आप डीजे बजा रहे हैं। पूछा गया ईद मिलादुन नबी ना मनाने की आपके पास क्या दलील है? सबसे पहली दलील यह है कि 600 साल तक कोई मनाया ही नहीं। 600 साल ना मनाने का मतलब सहाबा भी निकल गए, ताबई भी निकल गए, ताबई भी निकल गए, कम से कम 6 नस्लें क्या हो गई? निकल गई। 6 नस्लों ने नहीं मना, इसलिए हम भी नहीं मनाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, किसी को करने की कोई दलील हो तो हम मनाने लगे। चलो, वो 600 साल तक लोग गुमराह रहे, नऊज बिल्ला। अब लोगों के अंदर हिदायत का मामला आया, चलो उनके साथ हो जाओ। वो भी दलील देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और तीसरी चीज यह है, हमने आज उसूल में आपके साथ जुमा के खुतबे में बात बताई कि हम किसी भी सवाब के काम के लिए दिन का मुतय्यन करना जायज नहीं समझते हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात देखिए, अभी भी हमारे गांव की औरतें के पास 12 महीने के अलग अलग नाम हैं। हमारे पास नाम है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, वहां 13 तेजी, हिज्जा और क्या क्या है दुनिया भर के। उसमें एक महीना 12 रबीउल अव्वल वाला जो है वो 12 वफात है। उसका नाम क्या है? 12 वफात। हुजूर की वफात 12 को ही, ये बात पक्की है। 12 को वफात हुई है, ये बात पक्की है। अच्छा, 9 रबीउल अव्वल, हालांकि खुद आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को है, 12 को हुई नहीं है। और उसकी लॉजिक भी है। भाई, जब हुजूर पैदा हुए होंगे, अच्छा इसमें कितने आदमी, ईमानदारी से बताओ आप, हम लोग तो बहुत एडवांस जमाने में पैदा हुए हैं ना, कितने आदमी बैठे हैं जिनको एग्जैक्ट मालूम हो कि किस तारीख को पैदा हुए हैं? 1440 साल पहले, 1450 साल पहले तो कोई, आप आज भी अफगानिस्तान में डेट ऑफ बर्थ मालूम कैसे लिखी जाती है? साल लिखा रहता, ना तारीख ना महीना। 2005 में पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए हैं? आपके वोटर आईडी में सबकी पैदाइश क्या लिख दिया है यूपी वालों ने? सबकी पैदाइश 1 जनवरी लिखी है। कितना पैदा हो गया 1 जनवरी का? वोटर आईडी है, एक सच्चा सबूत है। डेली आप देख लीजिए, गांव के लोगों के 100 लोगों में से कम 50% की तारीख है पैदाइश क्या लिखी हुई है? सन कुछ भी लिखा हो, लेकिन महीना और तारीख क्या लिखी है? एक लिखी। 1450 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि तारीख पैदाइश याद करने की चीज है कोई। ये एक अलग बात है। जब नबूवत आई, नबूवत का ऐलान हुआ, अब नबी जब दुनिया से गया तब नबी की लोगों ने तारीख याद की, क्योंकि अब वो एक शख्सियत उठी दुनिया से। तो तारीख वफात जो है वो सही है, तारीख विलादत का पता ही नहीं सही। और अगर आला हजरत की बात माने तो 9 तारीख है, तो 12 रबीउल अव्वल तो कोई चीज ही नहीं। अब सवाल ये, लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को वफात है, लेकिन हम वफात क्यों माने? हुजूर तो हर वक्त क्या है? जिंदा हैं। यही बात है ना? कह रहे थे आप? सुनिए, उसका जवाब सुन लीजिए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक, जिस दिन हुजूर की वफात हुई है, इत्मीनान से बैठे रहिएगा, हुजूर की जिस दिन वफात हुई, सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अच्छी हो गई। नमाज फजर में खिड़की खोली, आपके बाईं जानिब, जैसे ये मस्जिद है ना, तो दाहिनी तरफ लोग सफ में खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया, खिड़की खोली, बहुत खुश हुए कि बड़ी सीधी सफ में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए भी। बड़ा लंबी चौड़ी बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और बहुत से साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आज आपकी तबीयत बहुत बढ़िया है। आज, जिसको हम अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, मौत का संभाला। सब ने कहा, अबू बकर जैसा आदमी, इतना होश रखने वाला आदमी,
वो आदमी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को देखकर समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत आज बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल 3 दिन हो गया है, मैं घर नहीं गया हूँ, आप मुझे इजाजत देते तो घर की भी खोज खबर ले लें, कुछ लाना है सौदा सुलूक। उन्होंने कहा जाइए। अल्लाह के रसूल ने कहा जाइए अपना काम कर लीजिए। आपके बकौल तो हुजूर सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद जानबूझकर अबू बकर को हटा दिया। तो अबू बकर से दुश्मनी वाली बात हुई। आप मरने लगे तो टेलीग्राम करके और टेलीफोन करके भैया के अपने पास बुला ली होगी कि भैया का देखा चाहिए थे मरे से पहले। और अबू बकर जो गारे यार हैं उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आज हम इस दुनिया से जाने वाले, और उनको यहाँ से तड़ी पार कर दिया। ये कौन था भाई? मैं कुछ तो सोचो यार, अल्लाह ताला अकल दिए हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचारे चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो गई, हुजूर की वफात हो गई। अब जब सुने तो भागते भागते आए बेचारे। आए, चेहरा खोला और पेशानी का बोसा दिया। इधर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, इतना जो कह रहे हैं लोग गम मतलब जब वो हयात हैं तो गम करने की जरूरत, तो सबसे पहला गम तो कौन किया है? हजरत उमर किए। दीवाने हो गए, हदीस में आता है दीवाने हो गए, तलवार निकाल ली कि अगर किसी ने कह दिया ना तो गर्दन मार देंगे। हजरत उमर गमगीन हैं और आप कह रहे हैं कि साहब कोई गम ही नहीं है हमको, वो तो जिंदा है। अच्छा, सबसे पहले जब देखा हजरत उमर बिखरे हुए, संभालने वाला कोई नहीं है, तो हजरत उमर को सारे सहाबा को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बैठो, पहला जुमला का है नोट कर लें, छोटा सा मौलवी हूं नोट करते जाए बातें। हजरत अबू बकर ने तकरीर की, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा या इबादत करते थे उनको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा खुदा मोहम्मद मर गया है। नौबिल्ला। क्यों? आप उनको खुदा मानते क्या? भाई जब खुदा नहीं है तो इस दुनिया से क्या है कि एक दिन जाना ही जाना है। हुजूर के बारे में हम भी कहते हैं हुजूर अपनी हुजूर है, हयात किसी को मालूम नहीं है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही हयात हैं तो किसी आदमी को, ये सारे सहाबा को मिलकर कब्र के अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं है। हयात आदमी को ऊपर रखो भाई, अगर हयात का वो माना है जो आप माना समझ रहे हैं। शहीदों के बारे में अल्लाह ने कहा कि शहीदों को मुर्दा न कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। फिर आखिर में क्या कहता है? वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी की कैफियत नहीं मालूम है। भाई विरासत तक़सीम होती है, शहीद की विरासत तक़सीम होती है। तो ये कहना कि साहब हम 12 वफात है लेकिन गमगीन नहीं है, तो इसका मतलब हजरत उमर गमगीन रहे, तुम गमगीन नहीं हो। सारे सहाबा में अक्सर व बेशतर को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, इसलिए हजरत अबू बकर ने जब तकरीर की तब उमर जाकर के क्या हुए? ठंडे हुए। बहरहाल एक आदमी तय कर ले पंखा नहीं चल रहा है, क्या तय कर ले? पंखा नहीं चल रहा है। इसको कैसे समझाया जा सकता है? उसके समझाने का एक ही तरीका, सोटा उठा लो तो उनमें आ जाए। भाई अगर एक आदमी ने तय कर लिया कि मुझे यही कहना है पंखा नहीं चल रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। कहा गया है कि एक सवाल आया है कि कुरान मजीद कहता है कि वाम्मा बनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उस नेमत का इजहार किया करो। तो उन्होंने कहा रसूल अकरम की आमद एक बहुत बड़ी नेमत है, यकीनी बात हम भी मानते हैं। सवाल यह है कि आयत नबी पर उतरी और सबसे पहले किसने सुना? आपने सुना? नहीं, आप तो सुन रहे 1440 के बाद। अल्लाह के रसूल पर उतरी और सबसे पहले सहाबा ने सुना। वो इस आयत का माना नहीं जाने और आप समझ गए कि इससे मुराद है कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए, तो या तो आप सही है या सहाबा सही है, जैसा फैसला करना हो कर लो। पूछा गया है कि ईद मिलादुन नबी में चंदा देना जायज है? अभी बता दिया चंदा देना जायज नहीं है। पूछा गया क्या ईद मिलादुन नबी में दावत करना जायज है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे। अबे जब भाई नहीं तो कहां से कुरान हदीस ले आएंगे? पैदा कर लेंगे, बना लेंगे, कहां से ले आएंगे कुरान हदीस? ये एक अलग बात है। आप दिन न मुतय्यन करें किसी वक्त भी, कोई 12 रबीउल अव्वल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि जब पूछा गया कि आप दोशंबा जानते हैं, मंडे, सोमवार के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि हम सोमवार के दिन रोजा इसलिए रखते हैं कि हम इस दिन पैदा हुए हैं, तो खुशी की बात है ना। फिर दूसरा फरमाया कि दोशंबा के दिन ही अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया। सही हदीस है। नबी के वसल्लम के तरीके पर आ जाओ, हर दोशंबा को रोजा रखो हुजूर की पैदाइश की खुशी में, वो करने के लिए तैयार नहीं है। करना वो है जो नबी ने नहीं किया है।
जो उन्होंने किया है वो नहीं करना है, ये हमारी आदत बन चुकी है। और आप बर्थ डे नहीं मनाते हैं, बर्थ डेट मनाते हैं। हुजूर बर्थडे मनाए हैं, भाई हर दोशंबा को रोजा रखे, आप भी रोजा रख लीजिए, बड़ा शौक है तो मनाने का तरीका बयान कर दिया गया है। पूछा गया ईद मिलाद के दिन कसरत दरूद किस हदीस से साबित है और उसकी फजीलत क्या है? भाई हदीस उस वक्त मिलती है जब पहले ईद मिलादुन नबी मिलेगा तब हदीस मिलेगी। जब ईद मिलादुन नबी ही नहीं है तो कहां से हदीस साबित कर दी जाएगी कि कसरत आप रोज पढ़ें दरूद शरीफ, बड़ी फजीलत है, लेकिन ईद मिलादुन नबी के दिन पढ़ने की कोई फजीलत नहीं है। पूछा गया है जुलूस निकाला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और आप लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना नाजायज है। समझे क्या पूछ रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया मक्के से कि मैं जाने वाला हूं तो मदीने वाले रोजाना इंतजार करते थे। अब इनको ये नहीं मालूम था मदीने वालों को कि 3 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मक्के में गारे सौर में छुपे हुए हैं। अब ये उस लिहाज से आइडिया लगा रहे हैं कि इतना लंबा सफर आदमी अगर चलेगा तो फला दिन आ जाना चाहिए। अब ये रोजाना जाते, वो 3 दिन उनको पता नहीं ना, रोजाना बेचारे मदीने वाले जाते थे। जब जिस दिन अल्लाह के रसूल पहुंचे तो एक यहूदी दरख्त पर चढ़ा हुआ कुछ काट रहा था खजूर के, उसने देख लिया कि साहब ये लोग जिनका इंतजार कर रहे हैं वो शख्सियत आ रही है। उसने ऐलान कर दिया। बहरहाल मदीने में लोग इकट्ठा हो गए। लोग आप ये कह सकते हैं कि जुलूस की शक्ल में लेकर के गए। लोगों ने अच्छे अच्छे अशार पढ़े, लड़कियों ने अशार पढ़े। बहुत मशहूर जो है वो नज़म पढ़ी गई, तलाल बद्र अलैना, कि चांद आज हम पर तुलू हुआ है, पढ़ी गई। तो कह रहे हैं कि देखो जुलूस निकला है। अच्छा ये जुलूस आमद का है या ये जुलूस पैदाइश का है? अब यार फूटे घुटना हमारे आंख वाली बात है भाई। जुलूस निकाल, अच्छा फिर अगले साल 12 रबीउल अव्वल आया कि नहीं आया, तो फिर जुलूस निकालना चाहिए था। अगर ये माना जुलूस का है तो अगले साल भी तो अभी आपने हुजूर ने 10 साल वहां रहे मदीने में, कितने दिन रहे? 10 साल। तो 10 साल हर उस तारीख को क्या होना चाहिए था? जुलूस निकलना चाहिए था। तो ये आदमी दलील ऐसे देना चाहे तो इसका कोई इलाज नहीं है। एक साहब ने कहा है कि मौलाना साहब ईद मिलादुन नबी इसलिए मनाते हैं ताकि आने वाली नस्लें को मालूम होता रहे कि हमारे नबी की तारीख वफात क्या है, हमारे नबी की तारीख विलादत क्या है। तो इससे इसी बहाने लोगों को मालूम रहता है। ठीक है, बात अच्छी है। अच्छा अगर नहीं मालूम होगा तो आपका अकीदा, आप जहन्नम में चले जाएंगे। कोई हुजूर की तारीख, हुजूर की दादी का नाम मालूम है? निकाय नहीं मालूम है? हुजूर की नानी का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। यानी हुजूर से दादी नानी तो फौरन है ना, एक ही नस्ल के बाद है ना। हुजूर की वालदा नानी, हुजूर के बाप की वालदा दादी, दादी नानी का नहीं मालूम है तो आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर तारीख नहीं मालूम होगी तो जहन्नम में चले जाएंगे। या नस्लों को उस तारीख से कोई वास्ता ही नहीं है। जो असल जानना चाहिए अच्छा हुजूर ने क्या फरमाया? लोगों मेरे शजरे को याद करो, वो हदीस मौजूद है। शजरा नहीं याद कर रहे हैं, तारीख के चक्कर में लगे हैं। एक साहब ने लिखा है, मौलाना साहब एक नेक काम है ईद मिलादुन नबी मनाना, अगर नेक काम कोई कर लिया तो आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? ये भी बात बहुत अच्छी है। सवाल यह है कि नेकी की परिभाषा क्या है? नेकी किसे कहते हैं? हम जिसको नेक समझे वो नेक है, या अल्लाह और उसके रसूल जिसको नेक समझे नेक है, और सहाबा का अमल जिसको बताए? ये पहले आपको अपनी जिंदगी में बहुत बुनियादी सवाल है। इस एक मसले को आप तय कर ले तो पूरी जिंदगी के सारी रसूमात, सारी खुराफात खत्म हो जाएगी। क्या नेकी की परिभाषा क्या है? हमारे पास नेकी की परिभाषा ये है कि जो अल्लाह बोले, रसूल बोले, सहाबा का अमल हो, उसके अलावा हम किसी को नेक नहीं मानते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर असवद के पास गए, जब हज करने गए, कहा हजर असवद कान खोल के सुन ले, तू एक पत्थर है, तू एक पत्थर है, ला तज़र्रु वला तनफा, ना तेरे अंदर जरर पहुंचाने की ताकत है और ना तेरे अंदर नफा पहुंचाने की ताकत है, तू कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने चूमा क्यों है? हमने माना क्यों तुझे? हमारे नबी ने चूमा है, इसलिए हम आपको मानते, वरना आप कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर किसी को नफा नुकसान पहुंचाने की कोई सलाहियत नहीं है। इस परिभाषा नहीं बता दिया, परिभाषा बता दिया। एक और मिसाल बताता हूं। हजरत बाबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु नए नए मुसलमान हुए थे। गौर से सुनिएगा, बड़ी मजे की बात है। नए नए मुसलमान हुए थे तो वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, तो हजर असद के कोने को चूमा, दूसरे कोने को चूमा, तीसरे कोने को चूमा, चौथे कोने को चूमा।
تو حضرت अब्बास हुजूर के चचा जान दूर बैठे थे कि देखा माविया तो बड़ी चुमौल लगाए यार, चारों को ना चूम रहे। तो जब वो खत्म कर चुके तवाफ तो बुलाया उनको, बुला करके पूछा कि बाबू ये क्या कर रहे हो? कहा तवाफ कर रहे हैं। कहा आपने हजरत असवद वाले कोने को चूमा, उसको भी चूमा, इसको भी चूमा, इसको भी चूमा। तो उन्होंने कहा भाई बरकत वाली जगह चूम लिए तो कौन ऐसा पहाड़ टूट पड़ा यार, है अच्छी जगह थी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इसका मतलब आप हुजूर से ज्यादा जानते हैं कि किस चीज में बरकत है। हुजूर को मालूम हुआ कि हजरत असवद के कोने में बरकत है और आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं और आपको तीनों कोने की बरकत अलग से मालूम है। इससे क्या मालूम हुई? वो बरकत भी आई है कसम खुदा की, वहां थानवी कहते हैं हमारे नबी के चूमने की वजह से। अगर हमारे नबी ने उसको भी न चूमा था तो वो भी कुछ भी उसकी हैसियत नहीं थी। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत। बीवी को सुख पहुंचाना बहुत सवाब का काम है। बताता हूं आपको जिन लोगों को क्यों अल्लाह के रसूल ने जिंदगी भर अपनी बीवियों को सुकून पहुंचाया। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा वाक्या बताता हूं आपको। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ईद का जमाना था, बीवी ने उनका एक कुर्ता बनाया, पहले वो हाथ से सिलती थी, तो उन्होंने ऐसा कलर का बना दिया कि कोई आलिम नहीं पहन सकता। अब जैसे मैं टी शर्ट लाल और अंगड़ी पहन करके आ जाऊं तो आप क्या करेंगे? खुद देखेंगे, देखने के बाद मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ होगा ना। हम आपके दिमाग में एक आलिम का लिबास है, उस लिबास से हट करके एक आलिम पहनेगा तो यकीनी बात है कि लोग परेशान हो जाएंगे। जब ईद का दिन आया तो जो उनकी अहलिया थी उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए इस बार एक कपड़ा सिला है, वो आपको ईद के दिन पहनना है। उन्होंने कहा ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। वो लेकर के आ गई वो कलर। अब जब इमाम मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो बेचारे के पैर से जमीन सरक गई कि ये हमारे पहनने के लायक, और हम ही को खुतबा देना है ईदगाह में, लोग क्या कहेंगे। फिर हजरत लिखते हैं कि मैंने सोचा कि बड़ी मेहनत से इसने बनाया है, शरई लिहाज से नाजायज तो नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा ठीक है। और उनको महसूस नहीं होने दिया बेगम को कि वो महसूस करें कि इनको नागवार गुजरा, और वो पहनकर चले गए। कहाँ? ईदगाह। कहते हैं कि मैं किस हालत में गया और कितनी देर वहां रहा ये मैं जानता हूं। और नमाज खत्म होते ही लोगों ने कहा नबी क्या है, तो पता ये चला कि लोगों के लिए जो है दिल को खुश रखने के लिए यहां तक बात होती है। बहरहाल तो सवाल किस तरह आया था? कसरत जरूर कर, ये वाला है। पूछा गया है कि एक नेक काम, एक नेक काम, तो नेक काम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? नेक वो है जो अल्लाह बोले, नेक वो है जो रसूल बोले, नेक वो है जिस पर सहाबा का अमल हो। सहाबा को भी हम बार बार इसलिए शामिल कर रहे हैं कि उनको भी हुजूर ने शामिल किया है। माना अलैहि वासाबी, हुजूर ने फरमाया कि लोगों मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत का इत्तिबा करो। लिहाजा हुजूर ने सहाबा को शामिल किया, इसलिए हम भी हुजूर को सहाबा को शामिल करते हैं। बहरहाल पूछा गया है कि मौलाना जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा मनाना किसी सहाबी, अइम्मा या मुहद्दिस से मना किया हुआ है? अभी आपको मैंने बताया कि मना करना जरूरी नहीं होता है, इबादत के लिए होने की दलील चाहिए, ना करने की दलील नहीं चाहिए। देखिए शरई लिहाज से उसूल है, असलु कुल्लु शैइन मुबाहुन, एक उसूल है कि हर चीज की असल जायज है, हर चीज की असल जायज है सिवाय इबादत और अकीदे के। मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछें मौलाना साहब मैं सोया, मेथी, आलू, पालक, बैगन मिला के सब्जी बनाना चाहता हूं, कुरान हदीस में कहां लिखा है, जायज है या नाजायज? हम इसके लिए दलील नहीं तलाश करेंगे, हम दलील ये तलाश करेंगे कि ऐसे मिक्स करके बनाना नाजायज तो नहीं है, नहीं हम बोलेंगे जायज है, जायज है, हम कहां तक हदीस तलाश करेंगे। लेकिन इबादत में आप ये सवाल नहीं करें कि मौलाना ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं करो, इसके लिए नहीं करने की कोई हदीस है, ये उसूल नहीं है। इबादत और अकीदे के अलावा ये उसूल है कि हर चीज की असल जायज है जब तक कि मना मौजूद हो, लेकिन इबादत में मना नहीं, इबादत में करने के लिए दलील चाहिए। बहरहाल कहा गया है मौलाना साहब ईद मिलादुन्नबी में चिरागा करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती हैं कि हमारे आंगन में ऐसा लगता था कि सारे सितारे टूट रहे हैं। वहां से ये बात मालूम होती है कि चिरागा करना जायज है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये बता दें सैयद सुलेमान नबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरतुन नबी, उन्होंने कहा वाकई झूठा है,
कुछ लोगों ने लिखा है, सही हो सकता है। सवाल ये है कि वो जब टूटा तो उसके बाद 40 साल तक किसी को मनाना चाहिए था ना, चिरागा करके। नहीं, हजरत आमना ने देखा, बयान भी किया, तभी तो हमको मालूम हुआ। तो सवाल ये है कि वो 40 साल, फिर 40 साल के बाद फिर 23 साल नबूवत के, किसी ने वो चिराग टूटने की, सितारे टूटने की वजह से घर में चिराग नहीं जलाया। पूछा गया है मौलाना साहब, हर साल गिलाफ काबा तब्दील होता है जिसका कुरान हदीस में कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ईद मिलाद नबी के लिए आप लोग दलील क्यों तलब करते हैं? ऐसे इन्होंने 5-6 सवाल के एक उसूली जवाब दे देते हैं। सबसे पहली बात तो ये बात गलत है, गिलाफ काबा नबी के जमाने में तब्दील हुआ। अल्लाह के रसूल साहब, बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा 10 तारीख का मुहर्रम का। साहबा से फरमाया कि हम लोग रोजा रखते थे, क्योंकि अरब लोग बहुत जमाने से गिलाफ काबा एक दिन तब्दील करते थे, लिहाजा हम लोग रोजा रखते थे। अब अल्लाह ने हमको रमजान का रोजा दे दिया है, लिहाजा 10 तारीख का रोजा रखना चाहिए, जिसका दिल चाहे रखे, जिसका दिल चाहे नहीं रखे। तो ये नहीं कहें हुजूर के जमाने में खाने काबा का गिलाफ होता था। दूसरा सवाल पूछा गया है, गिलाफ काबा पर आयात लिखी जाती है, कुरान हदीस में कहीं इसका सबूत नहीं है। एक बात बुनियादी तौर पर समझ लें, जो काम नेक है, अगर ये मैं बात आपको समझा ले गया तो बड़ी बात समझाया। जो काम नेक है, कुछ नेकी के काम ऐसे हैं जिसको हुजूर के जमाने में नहीं किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? रिकॉर्डिंग करना। नबी अगर अपने जमाने में अपनी तकरीर को रिकॉर्ड करना चाहते तो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अगर नबी अपने जमाने में कोई काम नहीं कर सकते थे और बाद वाले लोग उसको करें और वो शरीयत के खिलाफ नहीं हो, तो ऐसे सारे काम जायज हैं। नबी जिस काम को कर सकते थे और उन्होंने अपने जमाने में नहीं किया और आप सवाब समझ कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलाद नबी मनाना चाहते तो मना सकते थे? नहीं मना सकते, नहीं मनाया, लिहाजा नहीं कर सकते। तो नेकी को ऐसे नहीं जाने। नेकी क्या है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर करते हैं, जैसे लोग कहते हैं आप चश्मा लगाते हैं, आप स्वेटर पहनते हैं, भाई चश्मा हुजूर के जमाने में था और आपने नहीं लगाया तो ठीक है। जो चीज हुजूर के जमाने में नहीं है और बाद वाले वो कोई अगर करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं है, तो ऐसे सारे काम जायज हैं। कितने? सारे काम जायज हैं। लेकिन जो हुजूर कर सकते थे उसको अगर हुजूर ने नहीं, मिसाल के बाद अजान से पहले आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, पढ़ते ना बहुत सी मस्जिद में, दरूद शरीफ हुजूर अजान से पहले पढ़ सकते थे, अपने जमाने में पढ़ सकते थे। उन्होंने पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप इसको अच्छा नहीं मान सकते। अच्छा होता, मैं एक अगला जुमला बोलने जा रहा हूं, अच्छाई हमारे रसूल से मिस नहीं हुई है। फिर से जुमला सुन लें, जो चीज दुनिया की अच्छी थी सवाब के तौर पर, वो हमारे रसूल से छूटी नहीं है। ये उसूल है हमारा। ऐसे इसी तरीके से इन्होंने बहुत से लिखा है कि लोग मदरसा बनाते हैं, बुखारी का खत्म करते हैं, ऐसे कई सवालात हैं। सवाल ये है कि इन तमाम के खत्म बुखारी हुजूर करना चाहते कर सकते थे? नहीं कर सकते, तो बुखारी ही नहीं थी। 250 साल के बाद तो बुखारी लिखी गई है। या मदरसा में इज्तिमा करते हैं, या इन्होंने तबलीगी इज्तिमा लिखा है। तबलीगी इज्तिमा जरूरत है, तबलीगी इज्तिमा जरूरत है, और जरूरत को किसी वक्त भी किया जा सकता है। लिहाजा ये सारे सवालात इसी किस्म से आए हुए हैं। इसी में खाने काबा का गिलाफ आया हुआ है और भी सवालात हैं। एक साहब ने और भेजा है, एक सवाल का हवाला दिया, अल कुबरा किताब का नाम है, अल्लाह मालूम कौन सी किताब है, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिसने मेरे आका की मीलाद पर खर्च किया तो गोया उसके इस्लाम को जिंदा किया। झूठी बात। झूठ लिखने के लिए दलील नहीं चाहिए, सच के लिए लोग दलील मांगते हैं। जितना झूठ बोलोगे उतना ज्यादा सुभान अल्लाह बोलेंगे। मैं तकरीर करता हूं, अभी अगर मैं झूठ बातें बोलूं, मुंह भी बनाएंगे ऐसा अलग, तो अभी रो पड़ेंगे सुभान अल्लाह। और कुरान हदीस डायरेक्ट बोलते, जू तक नहीं देखती कान पर। जब सही बात बोलो तो कोई सुभान अल्लाह नहीं, झूठ बोलो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बोरा खोल दिया, और जब बोरा खोला तो रूहें सारी उसमें भाग गई, सुभान अल्लाह। झूठे नंबर 1 है। ऐसे वाकयात सुनाते हैं तो सुभान अल्लाह बोलते हैं। बहरहाल हजरत अली, हजरत अबू बकर, उमर, तीनों का लिखा है कि